Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a interesting current affairs sessions, which is Union Budget. We have already covered the Union Budget in different parts, like part 1, part 2, part 3, and today is our last part, which is part 4. So in totality, we have almost covered 30 questions, and आज के जो होंगे they will be the final questions, but I will be giving you the briefing for the remaining questions. तो आपके जो top most important 50 questions हैं वो आज complete हो जाएंगे. ठीक है, तो गाइस आई होप आपको इस सीरीज में मजा आया हो. इसके बाद वी विल बी कमिंग अप विद अ डिफरेंट सीरीज ऑन करंट अफेयर्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द NABARD examination. So stay tuned to our channel for the latest update. Again guys, I would like to add up, if you are new here, please do subscribe to our Adda Regulatory Bodies channel. This channel specifically caters to the demand of the students who are preparing for regulatory bodies like RBI, SEBI, NABARD. तो जो भी इनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और इन्हीं के लिए नहीं, अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक NPS, IRDA, PFRDA, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी. Then guys, what you can do, you can also download our app, which is Adda 247 from the Google Play Store, to check out the different courses we are covering, to download the material that we are providing for free, like current affairs material, and also to get good chunk of discount. वो कैसे I will tell you by the end of the session. तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी will give a big boost to digital economy. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technology. This is to be issued by the which of the following entity? So most of you have given the right answer. The answer to this question is RBI. I'm sorry guys, RBI. Option A is the answer. तो आप लोगों ने जिन्होंने भी सही आंसर दिया था, they can check it out. Now we'll proceed with our today's session guys, and your question number 1 will come live now. As per the Union Budget 2022, the allocation is how many lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investment in the economy. So is it 10,000, 15, 50 या फिर 1 lakh? ठीक है गाइज, अगर आपको ने पढ़ा हो स्कीम फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल्स, ठीक है, तो उसके अंडर देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन लोन फैसिलिटी, लाइक दिस क्वेश्चन इज ऑन दैट. तो वो स्कीम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में, वो पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन की डिमांड है, दैट इज आस्किंग अबाउट अलोकेशन. देन एलोकेशन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1 lakh. ठीक है, I think marker is not visible to you. So answer is 1 lakh. ठीक है, moving to the next question. The total expenditure in 2022-23 is estimated at how many lakh crores, while the total receipts other than borrowing are estimated at 22.84 lakh crore. देखो बजट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसिप्ट्स है, वो अपने को पता होनी चाहिए. लास्ट ईयर देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का आइडिया अपने को होना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड, बिकॉज अगर आपको पता हो फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू. ठीक है, तो वो दोनों ही फिगर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एंड दे कैन बी आस्क्ड. ठीक है, why are you presenting the budget? Because you want to know what will be your total expenditure and total revenue, so you need to have a fair idea on that. So I have asked you about the total expenditure, and total expenditure will be 39.4 lakh करोड़. ठीक है, ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़. सो आपको ये फिगर याद रहनी चाहिए. ठीक है, देन आई हैव गिवन यू द टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, सो इट इज 22.84 लाख करोड़. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 39.45, बट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट द बोरोइंग. ठीक है, जो बचा हुआ देन यू विल गो फॉर द बोरोइंग, जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, देन यू विल गो फॉर द बोरोइंग. सो एक्सेप्ट बोरोइंग इट इज 22.84 lakh. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट द फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, last year there was a question on the fiscal deficit as well in the prelims of your examination, so you need to be aware of that. ठीक है, so this year there is a probability question पूछा जा सकता है. As per the Union Budget 2022, the fiscal deficit in this year is estimated at what percentage? 6.8, 6.4, 4.8, 7, 5.4. The right answer to this question is 6.4.
4. Guys, please participate in the chat section. देखो पार्टिसिपेशन से क्या होता है, यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन इन ए मच इजियर वे. वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है, एक इमेज बन जाती है कि यार वी हैव पार्टिसिपेटेड, तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कभी गलती नहीं होगी. दैट आई कैन गारंटी फॉर यू. ठीक है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज 6.4. Moving to the next question. As per the Union Budget 2022, the total outlay for Mahatma Gandhi Manrega scheme is what? 73,000, 65,000, 80,000, 90,000. Guys, देखिए मैंने आपका पूरा बजट ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया. उसमें कुछ आपको लग रहा होगा सर आपने टैक्स इनिशिएटिव्स के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया. देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स से रिलेटेड कुछ मिला नहीं. ठीक है, देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो मतलब दैट वर नॉट, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में वहां पे था कि द टैक्स हैज बीन रिलैक्स्ड अ लिटिल. तो वो चीजें जो है ना, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट इंफॉर्मेशन मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो जितने भी पॉइंट्स थे टैक्स से रिलेटेड दे आर नॉर्मल, एंड वहां पे कुछ ऐसा नहीं था कि एक्सेप्शनल हो और जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी हो. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रेड द डॉक्यूमेंट इन कंप्लीट. मैंने उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा एंड फिर मेरे को उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा. तो आई हैव मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्री विच इज द बजटरी एलोकेशन फॉर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स. ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक बजटरी एलोकेशन होता है फॉर डिफरेंट स्कीम्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमारे वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम किए जा सकते हैं. ठीक है, दे कैन आस्क यू रिगार्डिंग एनी ऑफ द स्कीम. तो उसमें एक तो मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका हमेशा एवरी ईयर डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स में यू कैन सी द क्वेश्चन. तो इवन नाबार्ड भी पूछ सकता है उसके बारे में. देन हमारा एग्जाम जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, तो एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे आई हैव फोकस्ड ऑन दैट. बट मेरा एक सजेशन आप लोगों से होगा कि प्लीज आप लोग जो है एक बार वो जो बजटरी एलोकेशन है डिफरेंट स्कीम्स का, एक बार अगर हो सके तो एटलीस्ट 2-4 एक्स्ट्रा स्कीम्स जो हैं जैसे स्वच्छ भारत, देन देयर आर अदर स्कीम्स फॉर विद द हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लें. ठीक है, जस्ट गो थ्रू. बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ पे कवर की ही है. तो मनरेगा का जो बजटरी एलोकेशन है इट इज 73,000 करोड़. ठीक है, तो याद रहेगा आई थिंक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the Union Budget 2022, the total outlay for the Jal Jeevan Mission, every now and then you will find Jal Jeevan Mission in the news, तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है. तो इसका भी हम आउटले एक बार चेकआउट करेंगे बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज इट? 73,000, 65,000, 60,000 और 90,000. जल जीवन मिशन का अगर आपको आउटले आपने चेकआउट किया हो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 60,000, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो those who have given the right answer, a big clap for them. Moving to the next question. Then we are asking about the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. The total outlay of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Option A 12,000 or almost 13,000, B 15,000, C 11,000 और D 9,000. Which of the following? देखिए आपको एग्जैक्ट फिगर जो वो है एग्जैक्ट फिगर होती है वो अगर याद नहीं रहती तो उसके अप्रोक्सीमेटली फिगर तो एकदम आप याद रख लीजिए. लाइक इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद रखना कि व्हाट इज 12,954, तो बेटर यू कैन रिलेट इट कि 13,000 वाज द एलोकेशन, एंड जो आपके ऑप्शंस होंगे वहां पे आप यू कैन इजीली एलिमिनेट. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन रिमेंबर. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक. अगर आपको यूज करनी है आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्ट फिगर याद रखेंगे तो बेटर है. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है. जल जीवन मिशन का जो इंपॉर्टेंट एलोकेशन था दैट इज 12,954. देन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर आस्किंग अबाउट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. देखिए अगर आप यहाँ पे देखें मैंने मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स पे ही फोकस किया है, एंड जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है वही स्कीम्स पे फोकस किया है. ठीक है, स्टिल कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हमारी मिस हो गई हैं. तो मेरा एक सजेशन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, प्लीज एक बार वो एलोकेशन देख लीजिएगा. ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं स्कीम्स पे फोकस किया जाएगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो कृषि विकास योजना का कितना एलोकेशन है? इज इट 10,400, 15,000, 13,900 और 9,500? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 10,400 और इन रियलिटी इट इज 10,433. ठीक है, कई बार इवन इन द एग्जामिनेशन आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट फिगर दी जा सकती है ऑप्शन में. अगर एग्जैक्ट दी हो तो यू विल चूज द एग्जैक्ट वन, बट अगर अप्रोक्सीमेट फिगर दे दी है, वैसे वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट फिगर ही देंगे, बट अप्रोक्सीमेटली भी दे दी हो तो यू विल चूज द अप्रोक्सीमेट फिगर. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8.
the total outlay of crop insurance scheme, again an agriculture related scheme. Is it option number A 15,500, B 10,000, C 20,900 or D 5,500? Please attempt it fast. So the answer to the question is real easy, the option number A, crop insurance scheme 15,500. देखो पार्टिसिपेट करोगे, मुझे भी कहां से याद है, मुझे भी तो यहीं से याद है। आई हैव जस्ट ये जो मैंने जब एमसीक्यू बनाए तो बस एक बार देखा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाए तो मुझे इसलिए भी याद है। ठीक है, आप लोग जब उसे एक बार देख लोगे, उसको पार्टिसिपेट कर लोगे तो आपको फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लाइक अभी मनरेगा का हमने डिस्कस किया था, कितना था 73,000, जल जीवन मिशन का 60,000, तो वो एक बार में ही रिवाइज हो जाता है अगर आप यू आर पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, एज पर यूनियन बजट अगेन द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, इसके बारे में देयर वर न्यूज़ेस, तो आई हैव एडेड इट, इसके बारे में पूछा जा सकता है अगेन। तो इसका टोटल आउटले कितना था? इज इट 50,000, 60,000, 68,000, 70,000? ठीक है, किसी भी स्कीम का एक इंपॉर्टेंस आप बजटरी एलोकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्कीम। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 68,000। ठीक है, आ गया है, सर को याद था। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि बजट में देखिए जो हमारे शुरुआत के 3 सेशंस थे उसमें हम वी हैव डिस्कस द स्पीच इन टोटलिटी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने कंप्लीटली डिस्कस की आप लोगों के साथ। देन स्पीड जैसे जैसे हम आगे बढ़े बजटरी स्पीच के, उसी हमने फ्लो फॉलो किया है। बजट की स्पीच का जो फ्लो एग्जैक्ट स्पीच में था उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट 3 सेशंस थे आपके क्वेश्चन मोस्टली उसी पे होंगे। देन जब हम स्पीच से आगे के इस पार्ट में बढ़े तो वी हैव फाउंड आउट कि जो फिस्कल जो अनाउंसमेंट्स थे गवर्नमेंट के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो हमने वहां पे थोड़ा सा स्किप किए क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ऐसे रिलेवेंट नहीं थे कि हाँ कि कोई डाटा ऐसा लग रहा हो जिसपे क्वेश्चन बने ही बने। बट स्टिल वेरी लेस प्रोबेबिलिटी इज देयर। अब यह प्रोबेबिलिटी तो हमेशा होती है क्वेश्चन पूछने की। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे, आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई है भी नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्किप करना तो देखो आप एक रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देन वी हैव जंप फ्रॉम देयर टू द बजटरी एलोकेशंस। बजटरी एलोकेशंस में अगर आप देखो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। व्हाट वी हैव डन, वी हैव फोकस मोस्टली ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर और वन ऑफ द मोस्ट आज स्कीम विच इज मनरेगा। ठीक है, तो अगेन देयर आर फ्यू मोर एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स। आप थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पता रख सकते हो। जो थोड़ी रूरल सेक्टर की स्कीम्स हो उनके बारे में भी थोड़ा अगर आउटले अगर आप याद रख सकते हो दैट वुड बी बेटर। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो हमने इस सेशन में कवर कर ली। ठीक है, तो गाइज आई होप आपका यूनियन बजट अब अच्छे से तैयार हो गया हो। एक बार अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी हमारी पीडीएफ्स हैं उनको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, उनके थ्रू रिवाइज करना चाहते हो, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार लास्ट मोमेंट के तौर पे रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑप्शंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आंसर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ बजट में आपके लिए रिलेवेंट नहीं बचा, जितना था सारा इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, फेज 1 फेज 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन हमने एक बार रिवाइज कर ली है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज एक्चुअली योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च करना तो आप लोगों का भी बनता है। द टोटल बजट एलोकेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर स्टैंड एट how many lakh crores? A considerable 3.1% of the total project expenditure for this year. So is it A 1.24, B 1.5, C 2 or D? Please answer this question in the comment section. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड that is all from my side regarding the union budget. Now you can feel confident कि हाँ ऑलमोस्ट हमारा यूनियन बजट देखिए बहुत इजीली 30-40 क्वेश्चंस में हम कवर कर लिए हैं। बट स्टिल छोटा मोटा जो एक्स्ट्रा बचता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बिकॉज देखो आप क्वेश्चन ही है, आउटले है, मैं उस पर 10 क्वेश्चन बनाऊं 20 बनाऊं, इट विल बी मतलब लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे बेटर है कि आप एक बार थोड़ा सा खुद के एंड पे उसको देख ले। ठीक है, बजटरी एलोकेशंस एक बार देखना जरूरी हो जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप बजट खत्म हो गया है। So guys, that's all regarding the budget. We will come up with some new initiative with regarding the NABARD, and
डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो एक बार मैं एड ऑन कर देना चाहता हूं। जिसे भी अभी भी थोड़ा सा अनइजीनेस है डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, दे कैन download, they can not download, they can subscribe to our ebook which is available on our अड्डा वेबसाइट। आप नाबार्ड के सेक्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग की ई बुक मिल जाएगी, जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। ठीक है, तो टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं है, वहां पे आपको बहुत अच्छी कवरेज उस बुकलेट में मिल जाएगी एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ 249। बट ये प्राइस अपने को पे नहीं करनी। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कोड Y581 टू गेट 18% ऑफ। अगर आप ऐप से बाई करते हैं तो आपको एडिशनल ऑफ वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अगेन इट विल बी अराउंड आई थिंक 200 रुपीज, तो इट इज वर्थ ट्राइंग। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ट्राई इट। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है तो नो वरीज, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर एंड रिवाइज द मेरिट सेक्शन। ठीक है, तो गाइज दिस इज योर होमवर्क, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज अगर आप एक बार सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी, बीट आरबीआई, बीट नाबार्ड, किसी के लिए भी अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू आवर कोर्सेज ऑफरिंग्स, यू कैन चेक आउट हमारा आरबीआई का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल इन इट यू कैन एनरोल। ठीक है, प्राइसेस शायद आपको थोड़ी हाई लग रही हो बट दिस इज नॉट द रियल प्राइस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, बट ये प्राइस अपने को पे नहीं करनी। प्राइस जो आप पे करेंगे दैट विल बी we are using the code 5581, उससे you will get 78% डिस्काउंट इफ यू यूज द अड्डा ऐप। ठीक है, पहले ऐप को डाउनलोड करो और वहां से अगर आप कोर्स बाई करते हो तो कोड यूज करने पे आपको 78% ऑफ मिलेगा। एंड नाबार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये बाइलिंगुअल बैच जो हमारा मॉक डिस्कशन का है इसमें क्या होता है। इसमें गाइस वी विल कंडक्ट अ लाइव मॉक with the students, you will get a real interface। ठीक है, real interface like situation where you will see the question, you will mention the questions right answer, जहां आपको right answer देना होगा क्वेश्चन का, and वहां पे the faculty will be live and you can discuss your queries with the faculty on a live interface। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, you can go for it। ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक मॉक वहां पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट wisely। again wisely when I am saying use the code because मनी को सेव करना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है कि आप बैंक महापैक प्लस के लिए जाएं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स मिल जाती हैं विद द कवरेज ऑफ टेस्ट सीरीज एज वेल एज ई बुक्स, जो हमारे नॉर्मल फाउंडेशन बैचेस में नहीं होता। ठीक है, बट इसकी प्राइस शायद आपको हाई लग रही हो। अगर आप कोड यूज करेंगे Y581 तो इसकी प्राइस विल अगेन कम डाउन टू 7000। ठीक है, so guys that's all from my side। I hope you have enjoyed the video, I hope you have enjoyed the union budget series। in the coming days we will come up with a new initiative। so for now I am your mentor Veer signing off।